मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम लोग परसों पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग ऑफ रॉ डेटा एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो chronological classification, spatial classification, quantitative classification and qualitative classification, these have been already completed. Any question related to raw data or the spatial classification, geographical classification, sorry, spatial classification itself is called geographical classification. Next was the chronological classification, quantitative and qualitative classification. We have completed only these topics. If you have any queries, you can ask. Any question? चलो ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है then I am going to the next topic. Next topic is चलो शुरू करते हैं. Any question related to chronological classification? Raw data means we are doing third chapter, children. We are doing third chapter, that is organization of data. Organization of data. In this chapter, we have studied the first point, first topic, that is raw data. Raw data means the crude data. Crude data or the unorganized data, जिसको कि अभी assemble नहीं किया गया, उसको अभी sequence में बिठाया नहीं गया है. In a form we have collected the data, in the same form we have written. ठीक है, we have written the topic or the data in an original form, that is called the unorganized data or the raw data. जिस फॉर्म में हमने सर्वे करके डेटा कलेक्ट किया, उस कच्चे फॉर्म को रॉ डेटा कहते हैं. When we start classifying the data, then it can be classified in form of chronological data classification, in form of spatial classification, or in form of quantitative or qualitative classification. ठीक है? In chronological classification, we set the data according to time period. In chronological classification, we set the data according to the time period. अगर मुझे दिखाना हो कि 2014 में यूके में कितना वीट का प्रोडक्शन था, ठीक है, 2015 में यूके में वीट का कितना प्रोडक्शन था, 2016 में यूके में कितना वीट का प्रोडक्शन था. तो वी आर शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट. We are showing the production of wheat in United Kingdom, in Britain, by taking the different years. In different years, how much wheat has been produced in Britain. That is called the chronological classification, because we are arranging the data according to the time period. That it may be year, it may be month, it may be week, it may be any time. ठीक है. अच्छा, ये भी हो सकता है कि सुबह क्या टेम्परेचर था, शाम को क्या टेम्परेचर हो गया, दोपहर में कितना टेम्परेचर था. तो ये हम लोग आवर्स के अकॉर्डिंग, घंटे के हिसाब से, हम लोग टाइम के हिसाब से ले रहे हैं. तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा. इन केस ऑफ स्पाशियल क्लासिफिकेशन, डेटा इज अरेंज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ place, in context of towns, village, countries, है ना. तो कंट्री 2019 में इंडिया में कितना पॉपुलेशन था, 2019 में चाइना में कितना पॉपुलेशन था, 2019 में यूके में कितना पॉपुलेशन था. तो 2019 में मतलब कहने का कि यहाँ पर ईयर एक है, ईयर एक है 2019, लेकिन कंट्रीज अलग अलग हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक यहाँ पर मेन कंट्रीज है, न कि ईयर, न कि ईयर. तो एक ही ईयर में डिफरेंट कंट्रीज में पॉपुलेशन, so that we can make the comparison among the population of different countries. तो यहाँ पर
डिफरेंट कंट्रीज है, एक साल में कितना कितना पॉपुलेशन सारे कंट्रीज में है, तो ये हो जाएगा स्पाशियल क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, फिर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी रिलेटेड विद क्वांटिटी। तो भाई क्या कहते हैं, जैसे कि मेरी क्लास में मैंने क्या किया कि अपने क्लास के बच्चों का नाम लिख लिया, राइट फ्रॉम रोल नंबर 41 to 46, and according to their roll number I have written their marks in accountancy, marks in BST, marks in economics, in IP, in English. So that is the setting of data according to the quantity, according to the marks of the student. So here marks are important thing. Marks are very important thing upon which we want to concentrate. तो मार्क्स यहाँ पर मेन है, उसी मार्क्स को देख करके मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, कितने एवरेज हैं, कितने बिलो एवरेज हैं। तो ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखा, तो मार्क्स आर द क्वांटिटी, मार्क्स आर द, तो मार्क्स हो गया, हाइट है, वेट है, प्रॉफिट है, लॉस है ना, फिर एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ठीक है, वेजेस है, तो दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव है ना। फिर एक होगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में तुम लोग को मैंने दिखाया था ना कि उसमें सब कुछ क्या होता है कि मेन, यहाँ पे तुम लोग मैंने शो किया था कि सब कुछ जो है वो मेन, जैसे कि क्लास में 46 स्टूडेंट है ना, तो 46 स्टूडेंट्स में से मैंने लिख दिया 11D, ठीक है। फिर मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया, बॉयज गर्ल्स। फिर बॉयज में मैंने दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में मैंने बांट दिया। सिंगिंग में कौन अच्छा है, डांसिंग में कौन अच्छा है, सिंगिंग में कौन अच्छा, डांस में कौन अच्छा। गर्ल्स में मैंने बांट दिया, सिंगिंग में कौन अच्छा, डांस में कौन अच्छा है, ठीक है। जो सिंगिंग में अच्छा है उसको उसको एकेडमिक में कितना, वो उसको अकाउंटेंसी में कितना मार्क्स है, हिको में कितना मार्क्स है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस, on the basis of economic status, on the basis of employment, if data are classified, then it is called quantitative classification of data, है ना। इतना हो गया। अब भाई सवाल ये है कि मैम स्टैटिस्टिक में तो सारा मार्क्स होता है, सारा क्वांटिटी होता है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो स्पाशियल क्लासिफिकेशन हो, सब में तो हम लोग नंबर लिखते हैं। जैसे कि स्पाशियल क्लासिफिकेशन में मैंने एग्जांपल दिया कि यूके में पॉपुलेशन 2019 में कितना था, चाइना में कितना था, है ना, चाइना में कितना था। तो ये इस तरह का अगर हम लोग बोलते हैं तो भाई मैंने पॉपुलेशन लिखा, लिखा तो नंबर, लिखा तो क्वांटिटी, वो तो आखिर भाई स्टैटिस्टिक हुआ कि नहीं हुआ। स्पाशियल क्लासिफिकेशन हो या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, सब जगह हमने कहीं ना कहीं नंबर लिखा है, तो सारे क्लासिफिकेशन में नंबर 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 तो लिखा ही ना जाएगा, है ना। तो दीज आर द, हाँ फर्क कितना है कि क्रोनोलॉजिकल में मेन रहता है ईयर या फिर तुम्हारा क्या हो गया, वीक हो गया। स्पाशियल में हम लोग प्लेस का नाम लिखते हैं, इंग्लैंड है तो यूके है तो इंडिया है तो चाइना है तो जापान है, तो वी राइट द नेम ऑफ प्लेस इन स्पाशियल क्लासिफिकेशन। और प्लेस के बारे में जो भी पूछना है कि वहां पे मैट्रिकुलेट लोग कितने हैं, वहां पे ग्रेजुएट लोग कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये हो गया स्पाशियल। क्वांटिटी में पूरा नंबर होगा, पूरा नंबर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तुम लोग जो मीन मीडियन सॉल्व करते थे, दैट आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव थोड़ा सा अलग होता है। क्वालिटेटिव में पॉपुलेशन मेनली लिया जाता है, फिर उसमें उसको डिफरेंट क्वालिटी में बांटते हैं। क्वालिटी में कौन डांस में अच्छा है, कौन एलोक्यूशन में अच्छा है, कौन किस में अच्छा है, उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को बांटते हैं। कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, कितने रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा।
ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो मैम। नहीं पूछना है तो अब मैं तुम लोग को बहुत सारी चीज बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज, जैसे कि मेरे सामने किताब भी रखा हुआ है तो मैं देख रही हूँ एनसीईआरटी वाई की क्या क्या मुझे तुम लोग को बताना है। जैसे कि मैं तुम लोग को सबसे पहले बताती हूँ, सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज एंड discrete series, continuous variable and discrete variable. In NCERT you can see page number 27. At page number 27, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। आ रही है ठीक है, मैम। हाँ ठीक है, चलो पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 में देखो पॉपकॉर्न है। चलो मैम अभी भी नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है? नेट प्रॉब्लम होगा मैम। तो मैम नेट प्रॉब्लम होगा। करिश्मा बोल रही है, कौन है करिश्मा? हाँ सुनो, देखो पेज नंबर, अब आवाज आ रही है? अब क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पेज नंबर 27 में देखो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट है ना, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तुम लोग को मैं पहले बता दूं, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट पेज 27, मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कंटिन्यूअस में हो गया, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस देखो ये टॉपिक है तुम्हारा वेरिएबल, वेरिएबल्स कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। वेरिएबल का मतलब that can be varied. A simple definition of variable which you have read in the last chapter does not tell you how it varies. Variable differ on the basis of specific criterion. जैसे ये बहुत तरह से इसको समझाया जा सकता है। छोड़ो हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस और एक है क्या था, डिस्क्रीट, एक है डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट। यहाँ पर कंटिन्यूअस का मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स में लिखते हो ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. In class 9th and 10th you have found mean and median of this series. This is called continuous variable. ये continuous है। 0 to 10 इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9, 9.1, 9.2, 9.3 up to 9.9, up to 9.9. But 10 will not be included. 10 will not be included. Rather, 10 will be included in the next higher class. Similarly, in second class, these are called class children. These are called class. ये continuous series है. It is continuous variable. It is continuous variable. Variables means that can be varied. That can be varied from time to time, from place to place. तो यहाँ पे 0 ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स लिख दिया मैंने, तो 0 to 10 के बीच मार्क्स पाने वाले जो बच्चे थे वो थे 2, 10 to 20 के बीच मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 5, 20 to 30 के बीच मार्क्स पाने वाले हैं 4, ठीक है। तो 0 to 10 के बीच मार्क्स पाने वाले क्लास में 2 बच्चे हैं, 10 to 20 के बीच मार्क्स पाने वाले 5 बच्चे हैं। तो these are called continuous variable. These are continuous because a point where it comes to an end, the same point, from the same point it starts. The point where 20 ends, at the same point it starts. उसी पॉइंट से ये शुरू हो जाता है, उसी पॉइंट पर ये शुरू हो जाता है। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी यहाँ पर है, देखो कंटिन्यूअस है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये कंटिन्यूअस है ना। जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया, मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, मैंने यहाँ पर एंड किया, यहाँ पे 10 लिखा था, तो अब ये जो हिल है वो ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं बच्चों, यही से शुरू हो जाएगा, यही से शुरू हो जाएगा। 10 पर खत्म, 10 से शुरू, 10 पर खत्म, 10 से शुरू, 10 पर खत्म, 10 से शुरू, 20 पर खत्म, 20 से शुरू। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल, दिस कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल,
ठीक है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। और इसमें 0 से लेकर के 9 तक आएगा। जिसको 10 मार्क्स आएगा उसको हम लोग इस वाले क्लास में न रख करके उसको हम लोग इसमें रखेंगे। ये तुम लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कि नहीं, पहले बताओ। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल क्लियर। हाँ, तुम लोग यहाँ पर देखो, मुझे कुछ हड़बड़ी नहीं है, हालांकि मुझे क्योंकि अब पता है, अब ना ये इन 2 चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन में टाइम नहीं लगेगा। और ऑर्गेनाइजेशन मंडे को खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता है तुम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हो। तुम लोग जो पढ़े होगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टेलीमार्क्स क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होता है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। So I think you all are knowing about these things, but because it is given in 3rd chapter, so it is my duty to complete that. तो वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये मंडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर मंडे फ्रॉम ट्यूसडे आई विल स्टार्ट 4th chapter, that is presentation of data. In presentation of data, we have to learn the diagram, several type of diagram. So that will take 2 days only, I think. Within 2 days, presentation of data could be completed. ठीक है। ठीक इसके बाद आता है कैलकुलेशन वाला चैप्टर। उसमें हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, मीन मीडियन मोड। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट विदिन 1 week I can complete. तो it means 1 week plus 3-4 days extra. It means 1.5 week. Within 1.5 week, we will be completing our portion for the first term exam, for the half yearly exam. So there is no hurry to complete it, to complete that topic. So we will ठीक है, करना होगा, थोड़ा फास्ट करना होगा, लेकिन बहुत हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी अगर मैं सोचूं तो अगर रिवीजन करना होगा तो मुझे टाइम चाहिए। रिवीजन करना है सबको, रिवीजन करना है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। रिवीजन करना होगा, तब तो थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट में आप देखो, ये तो हो गया तुम्हारा। अब तुम लोग साथ साथ इसको पढ़ते जाओ, ये कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन 2, 5, 7, 9, 11 मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स। मैंने यहाँ पर मान लो मार्क्स लिख दिया, ठीक है। मेरी क्लास में अगर 15 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 15 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्क्स फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में मैंने लिखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो 5 students have scored 2 marks. 3 students have scored 5 marks. 5 students have got 7 marks. 2 students have got 9 marks. 1 student have got 11 marks. ठीक है। अब ये जो हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। This is called discrete. Why discrete? Because there is no scope of the student who have got 2.5, who have got 7.5, who have got 9.5. There is no scope for the students who have got marks in the fraction. There is no scope for them. There is no scope for their marks to put it here. है ना। मतलब कि ये जो मैंने जो शेड्यूल जो बनाया, जो मैंने ये टेबुलेशन तैयार किया, इस टेबुलेशन में कहीं पर भी 2.5 नंबर पाने वाले बच्चों के लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर बच्चा पाता है तो उसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। 2.5 नंबर पाता है तो भी मैं उसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्योंकि इट इंक्लूड्स फ्रॉम 0 to 9.9, फ्रॉम 0 to 9.9। तो 0 पाने वाला, 1 पाने वाला, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 4.5 मिला है, 6 मिला है, 6.25 मिला। हालांकि मिलता नहीं है ऐसा नंबर, पौने में नंबर नहीं मिलता है, 2.5 में मिलता है, 3.5 में मिलता है। तो जिनको फ्रैक्शन में मार्क्स मिलता है, दे कैन बी प्लेस्ड अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासेस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर के 9.9 पाने वाले को हम लोग इसमें प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन इस वाले में जिस बच्चे को 3 मिला है नहीं रख सकते हैं, 2.5 मिला है
नहीं रख सकते हैं, 7.5 मिला है नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दीज आर ब्रोकन नंबर, दीज आर ब्रोकन नंबर, दीज आर ब्रोकन नंबर, ये टूटे हुए नंबर। 2 के बाद 5 है ना, 3 है ना, 4 है, ये ब्रोकन है, ये जंप करता है, यहाँ से उठता है यहाँ चला आता है, यहाँ से उठता है यहाँ चला आता है, बीच में ये कहीं गिरता ही नहीं है, बीच में ये कहीं नहीं आता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट, टूटा हुआ, टूटा फूटा, ब्रोकन, और ये क्या हो गया कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, class interval, or you can call it continuous series, you can call it continuous series। ठीक है, continuous series is of two type, continuous series is of two type, it is exclusive class interval and inclusive class interval, exclusive class interval and inclusive class interval। exclusive class interval का मतलब होता है ऐसे, कैसे, यहाँ लिख दिया मैंने x, यहाँ लिख दिया है मैंने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पे 5 है, 7 है, 6 है। This is the example of exclusive class interval. Why exclusive? Who will answer? Who will answer? Why it is called exclusive? भाव्या बताओ, अंजलि बताओ, आसित, प्राची, तुम लोग आंसर बताओ, सौम्या, तुलिका, मैम क्योंकि नंबर सीरीज में है। नंबर सीरीज में है तो नंबर तो अभी हम एक और बताओ, वो भी सीरीज में आएगा। आवाज है सौम्या? यस मैम, सौम्या, यस मैम। सौम्या, हाँ तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। हाँ चलो ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये हो गया एक्सक्लूसिव, तो बताओ तो उत्कर्ष ये एक्सक्लूसिव क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव? मैम इसमें हम लोग 0 to 10 टोटल ले रहे हैं इसलिए। हाँ बोलो तो उत्कर्ष, क्या बोल रहे हो? मैम 0 to 9 लेते तो इंक्लूसिव होता, 0 to 10 में मैम इसमें 0 से 9.9 के बीच का सारा आ जाएगा, इसलिए एक्सक्लूसिव। हाँ देखो इसको एक्सक्लूसिव कहने का रीजन देखो क्या है, सही है। देखो इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को कहा जाएगा लोअर लिमिट। ये क्या है? सारे लोअर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट्स, एंड दीज 3 आर कॉल्ड अपर लिमिट, दीज 3 आर कॉल्ड अपर लिमिट, अपर लिमिट। इसको कहेंगे L1 लोअर लिमिट, 0, 10, 20 आर लोअर लिमिट, 10, 20, 30 आर कॉल्ड अपर लिमिट। L2 है ये है L1, तो L1 L2। इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। देखो इन एक्सक्लूसिव क्लास, एक्स मतलब एक्सक्लूसिव, इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल upper limit are not included in the same class. 10 will be not included in this class. If first class, second class, third class, 10 will be not included in the first class. Rather, it will be excluded. It will be excluded from the first class. ये पहले वाले फर्स्ट क्लास से ये निकाल दिया जाएगा, तो निकालने को कहते हैं एक्सक्लूड करना, छोड़ने को कहते हैं एक्सक्लूड करना, निकालने को कहते हैं एक्सक्लूड करना। तो 10 will be excluded from first class and it will be included in the second class. तो जो ये L2 है वो इसका एक्सक्लूडेड हो जाएगा, लेकिन सेकंड में आकर के वो क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। फिर सेकंड में 20 एक्सक्लूडेड हो जाएगा, थर्ड में जाके ये इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इसी में आएगा, 10 इसी में आएगा, 20 इसी में आएगा, तो L1 इसी में आता है, लेकिन L2 जो है वो इस वाले में नहीं आएगा। L2 20 इसमें नहीं आएगा, L2 30 इसमें नहीं आएगा, बल्कि ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये नेक्स्ट वाले में आएगा, ये
ठीक है, तो ये परिवार से बाहर निकल जाएगा, ये अपने परिवार से बाहर निकल जाएगा, ये अपने परिवार से बाहर निकल जाएगा। तो दो स्टूडेंट हु हैव गॉट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 9, they will be included in this class. But those students who have got 10, they will not be included, they will be excluded and they will be included in second class, है ना। और फिर ये 20 जो है ये यहाँ से हटके इसमें चला आएगा, तो इनको देश निकाला दे दिया जाता है, इनको देश निकाला दे दिया जाता है, इनको भी घर से निकाल दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है, because they are excluded from their family and they will be included, they will be accepted by the other family. So this is called exclusive class interval, है ना। लेकिन अब तुम लोग देखो कि इंक्लूसिव में कैसा होता है। इंक्लूसिव में क्या होगा, अभी जो उत्कर्ष बोल रहा था ना, तो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये हो गया x, मान लो ये हो गया मार्क्स, है ना, ये मार्क्स हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, तो 0 to 9 जिनको मिला है उसका काउंटिंग हम इस वाले में करेंगे, ठीक है। सारे लोग सुन रहे हैं कि नहीं, सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, हाँ, चलो ठीक, गुड। और हाँ, और सारे बच्चों का फेस है ना वो अभी एकदम स्माइलिंग होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल सारे बच्चे अभी ऐसे करके मुस्कुराएं, ठीक है। पता नहीं बहुत बेकार बन रहा है, ठीक है। सारे बच्चों को ऐसे अभी मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, ठीक है। उज्जवल मुस्कुरा रहे हो कि नहीं, अभी खुशी खुशी पढ़ रहे हो ना? यस मैम। चलो ठीक है, तुम्हारा चेहरा ऐसा है ना कि ऐसा है कि मैम पढ़ा रही हैं बेकार एकदम से। बोलो शिवम, पढ़ रहे हो कि नहीं? ऐसे हो कि ऐसे हो? ऐसे हो, नंबर 1 हो कि नंबर 2 हो शिवम? नंबर 2 है मैम। चलो ठीक है, चलो ठीक, गुड। नंबर अच्छा 3 है देखो, मैम। नंबर 3 कैसा है? मैम अच्छा है। नंबर ये वाला? यस चलो मैम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन हम पता है कैसे हैं, हम एकदम ना अभी एकदम ऐसे हैं, पता है क्यों? एकदम ऐसे करके, एकदम ऐसे करके हैं, पता है क्यों? गुस्साए हुए हैं, गुस्साए हुए इसलिए है ना क्योंकि अभी मैं 3rd क्लास हम ले रहे हैं, तो थोड़ा बोलते बोलते हम एकदम थक जाते हैं, तो एकदम मेरा सिट्टी पिट्टी घूम गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जिस बच्चे को मान लो कि 9.5 मिला है वो तो कहीं नहीं जा पाएगा, वो तो कहीं नहीं जा पाएगा, है ना। तो 10 to 19, तो 19.5 जिसको मिलेगा वो तो कहीं नहीं आ पाएगा। तो इट इज इंक्लूडेड क्लास इंटरवल, इट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव why inclusive? Because both limit, lower limit and upper limit, both are included in the same class. फर्स्ट क्लास में 0 भी आएगा, जिस बच्चे को 9 मिला होगा वो भी इसी में आएगा, जिस बच्चे को 10 मिला होगा वो भी सेकेंड क्लास में आएगा, 19 मिला होगा वो भी इसी में आएगा, है ना। 20 29 सब इसी में आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें 30 इसमें नहीं आ रहा था, 20 इसमें नहीं आ रहा था, 10 इसमें नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें 9 इसी में आ रहा है, 19 इसी में आ रहा है, 29 इसी में आ रहा है। तो ये इंक्लूसिव, बिकॉज बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। बोथ लिमिट्स, lower limit, upper limit, both are included in the same class, so it is called inclusive class interval. And here only L1 is included but L2 is not included, that is why it is called exclusive class interval, ठीक है। अब एक चीज मान लो, अच्छा देखो, ये हो गया क्लास, है ना। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अगर मान लो तुमको मैं कहूँ कि भाई मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू, तो सबको आता है? मिड वैल्यूज निकालने आता है? मिड वैल्यूज कैसे निकालोगे? मिड वैल्यूज कोई बोलो, मिड वैल्यूज कैसे निकलता है? MV, which is also called class marks. Yes, ma'am. Upper limit plus हाँ. lower limit divided by 2. हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5
20 + 10 30, 30/2 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। अब तुम कह रहे हो मैम इतना सिंपल चीज क्यों पढ़ा रही है? भाई इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सब दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये मिड वैल्यू, इसको और क्या कहते हैं? क्लास मार्क। इसको और क्या कहते हैं? क्लास मार्क। ठीक है, अच्छा अब बताओ तो अगर 0 to 9 है, जल्दी बताओ, बस 10 मिनट बच रहा। 10 to 19 है और ये x है, और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हो गया 29 to 30 है, 29 to 30। इसको ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल? ये इंक्लूसिव है मैम 0.5 घटा देंगे हाँ। यस 0.5 मैम। अपर कैसे लिमिट किए? में से मैम। पहला का मैम देखो अपर लिमिट में से 0.5 घटाएंगे और दूसरे का मैम लोअर लिमिट से मैम 0.5 घटाएंगे। कौन बोल रहा? शिवम की आवाज लग रहा है ना? यस चलो मैम। ठीक। हाँ देखो सुनो, देखो एक इसका तरीका भी है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस है ना। जितना डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 2, जितना डिफरेंस होगा L2 ऑफ फर्स्ट क्लास, L1 ऑफ नेक्स्ट क्लास, L2 ऑफ सेकंड क्लास, L3 L1 ऑफ नेक्स्ट क्लास, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, जो कि अक्सर 0.5 आता है। ठीक है, 0.5 आता है। इस 0.5 यानी हाफ, 0.5 को इसमें से घटा दोगे और इसमें जोड़ दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे और इसमें से प्लस कर दोगे, तो इसमें से घटाओगे तो -0.5 आएगा। लेकिन क्योंकि डेटा -0.5 में नहीं हम लोग लिखते हैं, तो